must be knowing Ms. Mintu Sharma. I don't know. Have you ever met her? Yes, I met once. Okay, great. So she is the country head. I take care of the entire recruitment and admissions and enrollment for Dubai campus specifically. I won't take much time. It's just a normal slide. We know that this university was founded in 1821, and we as a university came up with this like robotics and mechanics, all these two courses. And if you talk about the ranking and all, I'll just share this with you. This PPT you can go through with it. Our head campus is located in Edinburgh, that is in UK. The other two campuses is one is in Dubai, the other one is in Malaysia. So in Dubai, as you all know, Dubai is the second safest country in the world. 70 to 80% people are already got vaccinated over there. And because of this pandemic, even no one like lost their jobs over there, and economy is running absolutely fine comparatively to any other country. Because I know that that was a very big hit to all the countries in this pandemic, and the economy was completely shaken. But if you talk about the economy of Dubai, it is running absolutely fine. All the sectors were open. People are vaccinated over there, and so we started this campus back in 2005, and we were in Academic City before. But currently we got shifted to our new campus that is located at Knowledge Park, right? In Dubai? In Dubai. You can write down the entry requirements. For UG, it's 65% minimum. For PG, it's 55 to 60. And if the student scores 75%, we can offer direct second year entry for UG. So he can skip first year. Okay. Are we clear on this? Let's suppose student is holding in his 12th grade 75% and above. So direct entry will be allowed second year. For UG, we offer scholarship 80 to 85, 30%, 85 to 90, 40, above 90 is 50%. But there is a click, if the student is eligible and got awarded for 40%, so that will be equally divided in all the years of studies based on the first year tuition fee. Okay, didn't get your point. So let's suppose our first year tuition fee for business courses are 58,800 dirham. So we have to calculate 40% of that. Once the amount will come, that will be divided in all the 4 years of studies. Okay. Alright. So for UG applicants, they can work 15 hours in a week part-time. For PG students, they can work full-time because the classes will be conducted in the evening around 6:30. So they can work full-time over there and earn a very decent package. For PG, we offer scholarship. If it's 6.5 CGPA, then it's 10%. Above 7 CGPA is 15%. Are we clear on this so far? Any questions, any doubt? PG 65%? 6.5 CGPA, 10%. Above 7 CGPA, 15%. Above? 7 CGPA, 15%. And for UG, 80-85% above, they get 30 to 40% of scholarship. 80 to 85, 30, 85 to 90, 40, 85 to 90%. 40. 40%. Above 90 is 50%. So now what you have to pitch? Foundation, right? So for foundation, if you all do UK, right? So you need to understand that they charge for foundation with the same fee which they charge for the first year, right? But here that is not the scenario. यहाँ पे for foundation the amount will be 44,100 dirham. So if you calculate is 7 lakhs, approximately 7 lakhs, right, for foundation. And after completing 1 year at Dubai campus, student can apply for Edinburgh campus, in the campus transfer. Okay. अब इसमें benefits क्या क्या हैं? No miles required, no interview conducted, no funds required for visa, gaps are acceptable. Now we can pitch in, right? Like it's very simple. And if you talk about, we are offering 8,000 dirham of discount for all the students, COVID relief discount.
So what they will end up paying is like around 5.5 lakhs for the entire course foundation. ये समझ आया सबको फाउंडेशन? जी समझ। हाँ, आर वी क्लियर ऑन जी, दिस? जी, जी, पक्का आप फाउंडेशन समझा दोगे जी? What is foundation? नो प्रॉब्लम, आप समझा दीजिए। मैं तो सर आप समझा दीजिए। आप समझा दीजिए। फाउंडेशन कोर्सेज जैसे जिन बच्चों की इंग्लिश वगैरह नहीं लगी होती है उनकी प्रोफाइल में, जैसे ESL कोर्स, ESL प्रोग्राम आपने सुने होंगे, उसी तरीके से यूके देता फाउंडेशन कोर्सेज। मतलब जो जैसे प्री इंग्लिश प्रोग्राम जो आपके Absolutely. प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर फाउंडेशन कोर्सेज। जैसे 65 से नीचे परसेंटेज है, फर्स्ट ईयर एंट्री हमारी कितनी है? 65% पे। अगर उससे नीचे परसेंटेज है, वी एक्सेप्ट इवन 45% का भी स्टूडेंट फॉर फाउंडेशन। अब बेस्ट पार्ट ये है, पंजाब में आपने क्या पिच करना है, स्टूडेंट से 45% है, आपने ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें। स्टूडेंट्स का आधा तो 80% काम तो वैसे ही हो गया। स्टूडेंट ने फाउंडेशन के लिए अप्लाई करवाया, आप लोग 50% ही पेमेंट करवाओगे, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे एजेंट्स ने यही बोला है कि जब आते हैं तो पे 50%। उसके बाद स्टूडेंट कैन फ्लाई ओवर देयर दुबई कैंपस, 1 साल वहाँ कंप्लीट करने के बाद दुबई से एडिनबरा कैंपस यूके में ट्रांसफर ले सकता है। तो दिस वुड बी द इजीएस्ट वे हाउ द स्टूडेंट्स कैन फ्लाई ओवर टू यूके। क्लियर अभी भी नहीं हुआ? दुबई पढ़ा 1 साल, फाउंडेशन कर ली कंप्लीट, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक बच्चा यूके जाके पढ़ सकता है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी नहीं है, बट क्या है मिनिमम है। अच्छा चलो यहीं की बात करते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई भी उठाओ आप, कौन सी है बेस्ट यहाँ पे? यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है यहाँ पे? है ना? उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर आप 12th की मार्कशीट लेके जाओ पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी है? 12th के लिए हाँ। तो सर रिक्वायरमेंट तो नहीं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जैसे होता है। परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज 65 अबव। अब आपकी 55 है, जी। अब आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, नो। क्या करोगे आप? पढ़ाई तो करनी है आगे, अब यूनिवर्सिटी एक ही है, आप नहीं दे पा रहे उसमें एडमिशन, तो फाउंडेशन देंगे वो आपको उससे 1 साल पहले। फाउंडेशन का मतलब ही क्या होता है? आपकी प्रॉपर नीड डालना, जो आपकी कमज़ोर है 12th में, आपकी परसेंटेज नहीं है, 6 महीने सेमेस्टर्स पढ़ाएंगे। शुरू के 6 महीने वो आपको पढ़ाएंगे जो आपके वीक पॉइंट्स हैं सारे 12th के, उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया सक्सेसफुली 1 साल पूरा कंप्लीट करके, उसके बाद आप यूके ट्रांसफ़र ले सकते हो दुबई से। बच्चों ने अल्टीमेटली कहाँ जाना होता है? चलो मैं समझ गया कि दुबई के लिए नहीं होती है एप्लीकेशन, पर बच्चे ने कहाँ जाना होता है? यूके। तो इससे सिंपल वे है यूके। फाइल्स चाहिए दुबई कैंपस के लिए, इंटरव्यू चाहिए और फंड्स दिखाना है, गैप्स एक्सेप्टेबल हैं, और क्या चाहिए बताओ? ये हॉट केक है नहीं है, आप ये सेल आउट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अब समझ आया? आप चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हो, ये दुबई कैंपस है, अब आपने यहाँ से जाना है दिल्ली कैंपस, आप इंटर कैंपस ट्रांसफर लोगे जब आप 1 साल यहाँ पूरा कंप्लीट कर लोगे, और ये पंजाब में बहुत बिकेगा, बट आपको कैसे पिच करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Exactly. जैसे इसके ये आपने 44,700 दिरहम्स की 44,100 100, जी। ये इसकी फीस है? हाँ जी, ये फीस है पूरे साल की, पूरे साल की फाउंडेशन कोर्स हाँ की जी। फीस है। ये 8,000 दिरहम का डिस्काउंट ये किसमें मिल रहा है? इसी में मिल रहा है? इसी फीस पे मिलेगा। तो वो माइनस हो करके Minus आपकी हो जाएगा। हाँ। 32,000 पर जो आप पेमेंट करवाओगे वो पहले 50% इसी पे करवाओगे, इसी पे करवाएंगे। तभी वो जो बाकी की पेमेंट रह जाएगी उसमें अमाउंट उसमें एडजस्ट हो amount, जाएगा। okay, okay। अगर पूरी पेमेंट करवा रहे हो 5.5 लाख, अगर आप तैयार हो करवाने के लिए 7 लाख कुछ पेमेंट है टोटल, तो फिर उसमें आप ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड प्राइस आके फिर आप पूरी पेमेंट करवा सकते हो। ओके, मतलब स्टूडेंट को भी ऑप्शन दे सकते हैं कि ये आपकी टोटल फी अमाउंट है, साल की भी आप पेमेंट कर सकते हो पूरी और सेमेस्टर की भी पेमेंट कर सकते Absolutely, हो। absolutely। ये ऑप्शन हमारे ऊपर है कि बच्चे को कह सकते हैं कि आपको जाना किसके साथ में। Absolutely। एंड मेरे 2 क्वेश्चंस थे। अब हमें यहाँ पे तो फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर फाउंडेशन। तो दुबई से यूके में दुबई से यूके के लिए वहाँ next फंड्स की time- सिर्फ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ नहीं है। और फंड वो रहेंगे जो वो उसकी नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस और उसका Absolutely। लिविंग एक्सपेंस होगा, राइट? Absolutely, right। इफ स्टूडेंट इज ऑलरेडी रिफ्यूज फ्रॉम द यूके तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा उसका। क्योंकि वो दुबई जा रहा है, दुबई के बाद वो इंटर कैंपस ट्रांसफर लेगा। उसमें रिफ्यूजल का जो आता है पॉइंट वो आता है
कंट्री स्पेसिफिक, बट यहाँ तो यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर ले रहे हैं ना वो। बिल्कुल। प्रोग्राम हमारे पास सिर्फ रोबोटिक्स एंड मैकेनिकल के ही है। नहीं सब है, मैनेजमेंट, बिजनेस, आप वेबसाइट चेक करिएगा, सारे प्रोग्राम्स है। बस गूगल पे डालिएगा हेडेड वर्क दुबई और वहाँ पे स्टडी का ऑप्शन है, उसमें कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, यूजी, पीजी और ये फाउंडेशन के सब मिल जाएंगे आपको। अगर एलएलबी वाला स्टूडेंट है 3 टाइम रिफ्यूज जाए। एलएलबी तो है नहीं ना हमारे पास, लॉ नहीं, नहीं तभी है। मैंने पूछा इसलिए क्योंकि मेरे पास में वो जो स्टूडेंट है ही सेड की बाय बुक बाय ग्रुप आई जस्ट वांट टू उसको बोलो मैनेजमेंट का कोर्स कर ले। मैनेजमेंट के कोर्स पे ही लास्ट उसकी रिफ्यूजल है। हाँ दुबई के लिए अप्लाई तो करो। आप क्या परसेंटेज है उसकी 12th में? उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं चेक करूँगी। ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है? 60-64 के आसपास है। हाँ एलिजिबल है। आप आईएलटीएस भी कर लेगा। लास्ट टाइम एक्चुअली उसके एजेंट ने IELTS वगैरह तो चाहिए नहीं, आप करवाइए तो आप। है 64 है ग्रेजुएशन में उसकी। हाँ तो एलिजिबल है, आप करवाइए उसे यहाँ पे मैनेजमेंट ठीक है में। क्योंकि उसके ना खैर मैं बिना पर उनसे- पीजी कोर्सेज में नहीं है हमारा इंटर कैंपस ट्रांसफर, क्योंकि Okay, उसमें तो उसमें- पीएसडब्ल्यू मिलेगा हाँ, ना। हाँ, हाँ, स्टूडेंट्स को लालच क्या है पीएसडब्ल्यू का, हाँ। कि वहाँ पे जाके उनको ये मिलेगा, पीएसडब्ल्यू मिलेगा, और अगर पीएसडब्ल्यू ही नहीं है उसमें तो वो कोई जाने का फायदा ही नहीं है ना पोस्ट ग्रेड में। तो यूजी कोर्सेज में कैंपस ट्रांसफर नहीं है क्या? यूजी में तो Sorry, है, PG में नहीं है? पीजी में नहीं, पीजी में कुछ मिलेगा नहीं ना, पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकता साल, student। 1.5 साल की मास्टर्स एक साल की। की। तो पीजी में फुल टाइम जॉब कर सकता है। 95% एम्प्लॉयमेंट रेट है दुबई में, तो जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती हैं वहाँ पे। ये हमारे पार्टनर्स हैं सारे, और वी वर्क विद ऑलमोस्ट मोर देन 4500 कंपनीज ओवर देयर। ऑन कैंपस हमें प्लेसमेंट भी देते हैं, और आपको पूरा स्टूडेंट को सपोर्ट दिया जाएगा। हमारी वहाँ पे करियर टीम होती है, सो दे विल गाइड ऑल द स्टूडेंट्स, ग्रूमिंग में, रिज्यूमे बनाना, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज। आवर फुल सपोर्ट विल बी देयर। और एम्प्लॉयमेंट रेट जैसे मैंने बताया, इट्स मोर देन 95% ऑन द रिकॉर्ड। ये सब है, ये पीपीटी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। वी हैव मोर देन 4000 स्टूडेंट्स ओवर देयर एट दुबई कैंपस। We started this campus back in 2005 when there was no campus. Hayward was the first university who built this campus in Dubai. Accommodation हमारी सारी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं। एक्रीडेशन है हमारी PhD है दुबई में, और जो स्टूडेंट को डिग्री मिलती है एक्रीडेशन की, वो मिलती है रॉयल चार्टर्ड इन द यूके। तो यूके की डिग्री ही मिलेगी अगर दुबई से भी पढ़ाई कंप्लीट करता है student। ये अकोमोडेशन है, ये लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा, और स्कॉलरशिप और सारा सब चीज़ें मैं, ये फीसेज हैं, ये भी सब आप देख लीजिएगा उसमें। स्कॉलरशिप मैं आपको बता चुका हूँ, कोविड ये है स्कॉलरशिप वी आर ऑफरिंग इट 8000 दिरहम का। स्टूडेंट अगर फुल पेमेंट करता है कोर्स टारगेट से तो उसको 3% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है, तो उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी, और उसके ऊपर हम 25% देते हैं स्कॉलरशिप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बस, और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी स्टूडेंट को। वीज़ा फाइल करेंगे आप 15 से 20 दिन लगते हैं नॉर्मल वीज़ा में, 7 से 10 दिन लगते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए स्टूडेंट का, 25% फी पेमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट। वो आप 50 अगर करवाना चाहें वो आपके ऊपर है। एंड वीजा सक्सेस रेट 100% अप्रूवल है। वीज़ा दुबई का रिजेक्ट ही नहीं होता। 2870 प्लस 1310 ये न्यू वीज़ा प्रोसेसिंग फी है। 1399 मेडिकल इंश्योरेंस होगा। ये मैं आपको मेल अच्छा, कर आप ये मुझे दूंगा। मेल ही कर दीजिएगा तो। हाउ टू अप्लाई, बस वेबसाइट पे जाओ, फाइंड आउट हाउ टू अप्लाई के टैब पर क्लिक करो, एक पेज खुलेगा, वहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, साइन अप करना स्टूडेंट को, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, और वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड कर सकते हो। 12th के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अंडर ग्रेड के लिए 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट। पोस्ट ग्रेड के लिए हमें चाहिए अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, अपडेटेड CV और एक रेफरेंस लेटर। ठीक है, ये मैं आपको एक बार मेल कर देता हूँ, आप पासवर्ड डाल दीजिएगा इसमें। ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है? सेशन